السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں دیوالی کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں میں زبردست گہما گہمی دیکھی گئی۔ بچے ہوں یا بڑے، تمام اس تہوار کو جوش و خروش سے منانے کی تیاریوں میں مصروف دیکھے گئے۔ مقامی آتش بازی کی دکانیں خریداروں سے بھری پڑی تھیں اور رواں سال پٹاخوں کی قیمتیں نسبتاً مناسب سطح پر دیکھی گئی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ خام مال کی قیمتوں میں کمی اور GST میں نرمی کی وجہ سے پٹاخوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی، جس کا اثر صارفین کی خریداری پر صاف ظاہر ہو رہا۔ پٹاخوں فروخت کرنے والے دکانداروں نے بتایا کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں تارا، بم اور دیگر پٹاخوں کی قیمتیں تقریباً وہی ہیں، جبکہ طلب میں 10 تا 15% اضافہ ہوا۔ وشاکھاپٹنم اور وجے واڑہ کے کئی تاجروں کا کہنا ہے کہ بعض مقامات پر سامان کی سپلائی میں بھی رکاوٹ آئی۔ تجارتی حلقوں کے مطابق اس سال دیوالی کے موقع پر فروخت کا رجحان گزشتہ سال کے مقابلے میں بہتر ہے۔ قیمتوں میں استحکام، حکومت کی GST پالیسی میں نرمی اور صارفین کے جوش و خروش نے مجموعی طور پر بازاروں کو زندگی بخشی ہے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پاجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ بس سے اچانک دھواں نکلنے سے مسافرین خوفزدہ ہو گئے۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے سکندرآباد میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق پشپک الیکٹرک بس میں YMCA چوراہے کے قریب یہ دھواں دیکھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی چوکس ڈرائیور نے بس کو قریب میں روک دیا اور مسافرین کو فوری طور پر بس سے نکال دیا۔ بعد ازاں اس بات کی اطلاع فائر بریگیڈ کے عملے کو دی گئی، جس نے وہاں پہنچ کر جائزہ لیا اور دھواں کو نکلنے سے روک دیا۔ فائر آفیسرز نے کہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں بس کے پچھلے حصے سے یہ دھواں نکل رہا تھا، تاہم بر وقت چوکسی کی وجہ سے اس کو بجھاتے ہوئے ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا گیا۔ دھواں کے اخراج کے رک جانے پر مسافرین نے راحت کی سانس لی۔ بعد ازاں اس بس کو اس کی منزل کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ حیدرآباد کے میڈی پلی پولیس اسٹیشن کے علاقے PNT کالونی میں پارک کی گئی کار کے نیچے پٹاخے پھٹنے کے نتیجے میں اچانک شعلے بھڑک اٹھے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور آگ بجھانے میں کامیابی حاصل کی۔ شہر حیدرآباد میں ٹریفک پولیس نے ایک بائیک کو ضبط کیا، جس پر 58,895 روپے کے چالانات زیر التوا تھے۔ شہر کے ونستھلی پورم علاقے میں رانگ روٹ پر چلائے جانے پر وہاں موجود ٹریفک پولیس کے عملے نے اس گاڑی کو روکا، اور جب اس کے زیر التوا چالانات کی جانچ کی گئی تو ٹریفک پولیس کے عہدیدار بھی حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ اس گاڑی پر مختلف ٹریفک خلاف ورزیوں کے 57 چالانات تھے۔ اس بائیک سوار پر 58,895 روپے کے چالانات عائد کیے گئے تھے۔ بعد ازاں اس گاڑی کو ضبط کر لیا گیا۔ ساگر کمپلیکس سے گرم گڑا رانگ روٹ پر یہ گاڑی چلائی جا رہی تھی۔ ونستھلی پورم ٹریفک پولیس کے حدود کے بیشتر علاقوں میں یہ خلاف ورزیاں کی گئی تھی۔ ٹریفک پولیس کی ویب سائٹ کے مطابق اس گاڑی کا مالک ولم کیری بتایا گیا۔ تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS قائد ہریش راؤ نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں تلنگانہ میں گن کلچر میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ BRS کی حکومت میں زرعی ترقی کو فروغ دیا گیا، جبکہ موجودہ کانگریس حکومت نے گن کلچر کو فروغ دیا۔ انہوں نے دیوالی کے موقع پر پرانے شہر حیدرآباد کے بھاگیہ لکشمی مندر میں پوجا کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت میں پولیس کو بھی تحفظ حاصل نہیں رہا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنے پاس داخلے کا قلمدان رکھ
रखने के बावजूद महकमे दाखिला का जायजा इजलास मुनक्किद नहीं करते। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कायदीन और वुज़रा अपने मुफादात के लिए लड़ते रहते हैं। हरीश राव ने इस मौके पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। రకాలుగా ఆదుకోవాలని వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగంతో పాటు వారిని అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉండాలని కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. దీన్ని రివ్యూ చేసుకోవాలి. నిజానికి నైతిక విలువలు ఉంటే బాధ్యతలు ఉంటే ఆ రోజుల్లో హోంమంత్రులు రాజీనామా చేసేవాళ్ళు. కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రికి అట్లాంటి ఏమీ లేవు. सोने की कीमत में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है और धनतेरस से पहले हर रोज ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए नई बुलंदियों पर पहुंच गया। आलमी मंडी में सोने की कीमत $4,300 फी औंस से तजावुज कर गए। पिछले 5 सालों में सोने में ये सबसे बड़ा हफ्तावार इजाफा। एक तरफ जहां सोने के सरमायाकार जश्न मना रहे, वहीं माहिरीन एक संगीन इंतबाह भी जारी कर रहे। माहिरीन ने खबरदार करते हुए कहा है कि सोने में जरूरत से ज्यादा सरमायाकारी नुकसानदा हो सकती है, खासतौर पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी में सरमायाकारी कर रहे। सोने की कीमतों के बारे में बात करें तो इस धनतेरस को सोना पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा। इसकी कीमत में लगातार इजाफे से सरमायाकार भी लुत्फानंदोज हो रहे। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत $4,300 फी औंस से तजावुज करके नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमत $2,113 के इजाफे से $1,33,210 पर ट्रेड कर रही थी। मुकामी मार्केट के बारे में इंडियन बिलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम के लिए 24 कैरेट सोने की कीमत $3,403 की छलांग के साथ खुली और $1,30,874 तक पहुंच गई, जो इसकी अब तक की बुलंद तरीन सतह। इस दौरान 22 कैरेट सोना $1,27,730 10 ग्राम, 20 कैरेट सोना $1,16,480 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना $1,06,010 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा। घरेलू मार्केट में सोने की ताज़ा तरीन कीमतें जीएसटी और मेकिंग चार्जेस के अलावा होती हैं, जबकि 2025 में अब तक जहां सोने की कीमतों में 60% से ज्यादा का इजाफा हुआ, वहीं महज इसी हफ्ते ये तकरीबन 8% तक बढ़ चुका है। अगरचे के जुनूब मगरबी मानसून ने मुकम्मल तौर पर अलविदा कह दिया है, ताहम कई तेलुगु रियासतों में अब भी हल्की ता मूसलाधार बारिश जारी है। खास तौर पर शुमाल मशरकी मानसून के दाखिल होने और जुनूब मशरकी खलीज बंगाल में बनने वाले सतही दबाव के बायस आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में औसतन बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि ये सतह दबाव आइंदा 48 घंटों में खलीज बंगाल में कम दबाव के इलाके में तब्दील होने का इम्कान है। इसके ज़रिए असर आइंदा 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। महकमे के मुताबिक ये सतही दबाव फिलहाल मगरिब और शुमाल मगरिब की समत बढ़ रहा, जिसके नतीजे में ये कम दबाव वाला इलाका मजीद ताकतवर हो सकता है। इस निज़ाम के ज़रिए असर आइंदा 4 रोज़ के दौरान कई मुकामात पर शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। दिवाली की सुबह कौमी राजधानी में हवा का जहर एक बार फिर लोगों की सांसों में घुल गया। रोशनी और खुशियों के इस त्यौहार पर जब आसमान रोशनी से जगमगा रहा, वहीं दिल्ली की आबो हवा का मियार खतरनाक सतह पर पहुंच गया। कौमी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक सुबह 6 बजे दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स संगीन जुमरे में दर्ज किया गया। कौमी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के आदाद व शुमार के मुताबिक आनंद विहार में AQI 414 रिकॉर्ड किया गया, जो कि सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। वजीरपुर में 398, जहांगीरपुरी में 381, बुआना में 367 और अशोक विहार में 383 रिकॉर्ड किया गया। ITO पर AQI 344 और पिटपरगंज में 361 तक पहुंच गया। ये तमाम आदाद व शुमार बताते हैं कि कौमी राजधानी की फिजा में एक बार फिर सांस लेना मुश्किल हो गया। जैसे जैसे पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ का त्यौहार करीब आ रहा, दिल्ली में यमुना की सफाई पर सियासी जंग तेज होती जा रही। आम आदमी पार्टी के दिल्ली रियासती कन्वीनर सौरभ भारद्वाज ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता और वजीर प्रवेश वर्मा पर सख्त हमला किया।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत यमुना की सफाई का महज दिखावा कर रही। केमियाई छिड़काव झाग को कम कर सकता है लेकिन आलूदगी को खत्म नहीं कर सकता। सौरभ भारद्वाज ने वजीर आला रेखा गुप्ता और वजीर परवेश वर्मा को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर उन्हें यकीन है कि यमुना साफ हो गई है तो वो कालिंदीगंज से 1 लीटर पानी पी ले। भारद्वाज ने कहा है कि केमिकल छिड़कने से पानी में झाग कम होता है, आलूदगी नहीं। कुछ तालीम हासिल करें क्योंकि डिफॉर्मिंग एजेंट झाग को कम करते हैं, गंदगी को नहीं हटाते। आप स्प्रे कर रहे हैं और अब वही प्रवेश वर्मा का मंत्रालय दिल्ली जल बोर्ड उसको स्प्रे करा रहा है और आप कह रहे हैं कि साहब देखिए हमने पोल्यूशन खत्म कर दिया। तो आप झूठ मत बोलिए, आप ये बोलिए कि हाँ जैसे अरविंद केजरीवाल फोम हटाने के लिए काम करते थे वही हम भी कर रहे हैं, हम उनको वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में ही तैयार करदा तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की अजीम अलामत करार देते हुए कहा कि ये जहाज हिंदुस्तान की फौजी सलाहियत का मजहर है। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत सिर्फ एक जंगी जहाज नहीं बल्कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान की मेहनत और दबदबे और अहद बस्तगी की अलामत है और इसके खौफ से ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घुटने टेक दिए थे। हर साल फौजी जवानों के दरमियान दीपों का त्योहार दिवाली मनाने की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए इस बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोवा के साहिल और कारवार बहरी अड्डे पर वाक़े INS विक्रांत पर पहुंची और वहां बहरिया के जांबाजों के साथ दिवाली मनाई। बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने बहरिया और INS विक्रांत के हिंदुस्तान की समंदरी सरहदों का मुहाफिज और निगहबान करार दिया। दुबई से आने वाला कार्गो तैयारा हांगकांग एयरपोर्ट पर रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा, 2 अफराद हलाक। दुबई से आने वाला एक कार्गो तैयारा सुबह हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर जुज़वी तौर पर समंदर में जा गिरा, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:53 पर उसी वक्त पेश आया जब एमिरेट्स स्काई कार्गो की परवाज EK9788 जो तुर्क एयरलाइन एयर ACT के ज़रिए ऑपरेशन थी, दुबई के अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होकर हांगकांग एयरपोर्ट के नॉर्थ रनवे 07R पर उतरने की कोशिश कर रही थी और रजिस्ट्रेशन नंबर TC ACF लैंडिंग के दौरान फिसलकर अचानक बाईं जानिब मुड़ गया और एक ग्राउंड सर्विस व्हीकल से टकरा गया, जिसके बाद तैयारा समंदर के किनारे आकर रुक गया। इसका सामने का हिस्सा समंदरी दीवार के ऊपर लटका हुआ देखा गया। ज़राए के मुताबिक तसादुम के बाइस गाड़ी का एक पहिया अलग हो गया। खुशकिस्मती से तैयारे में मौजूद चारों अमले के अरकान महफूज रहे, ताहम ग्राउंड व्हीकल में सवार 2 अफराद जो इब्तदाई तौर पर लापता बताए गए थे बाद में मुर्दा पाए गए। इनमें से एक 30 साल शख्स को सुबह 5:55 पर समंदर से निकालकर मौके पर ही मुर्दा करार दिया गया, जबकि दूसरा 41 साल शख्स को नॉर्थ लानताओ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 6:26 पर उसकी मौत की तस्दीक हुई। वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जिसमें फायर सर्विसेज, मेरीन पुलिस और गवर्नमेंट फ्लाइंग सर्विस का हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहा। रनवे के तरफ का इलाका इमरजेंसी टीमों ने सील कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।